Now today we are going to start with chapter number 4, nutrition in plant. ठीक है, इस चैप्टर में न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. All living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. These basic functions which allow living organisms to live on earth are known as life process. ठीक है, जो बेसिक फंक्शन हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे रहते हैं वो फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. The basic processes related to life common to living organism are nutrition, जैसे आपका respiration, excretion, growth, reproduction, movement and response to stimuli. कुछ कॉमन हमारे लाइफ प्रोसेसेस है जिसमें आपका न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, स्टिमुली आता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आता है, एक्सक्रीशन आता है और ग्रोथ आता है. We have already learned about life processes. All living organisms require food which provides energy to perform the life process. Plants make their own food and animals obtain their food from plants or animals that eat plants. Human beings are also such organisms. So human beings and animals are indirectly or directly dependent upon animals. देखो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स एनिमल एंड डिपेंडेंट है फॉर द food. ठीक है. Now nutrition, the process of taking in food and its utilization by body is called nutrition. Derived from Latin word nutri meaning to nourish. We already know that food provides us with number of nutrients which are necessary for proper functioning of the body. देखो, जो हम फूड खाते हैं, taking in of the food in the body और उसका जो यूटिलाइजेशन है by the body से न्यूट्रिशन क्या. ठीक है, जो फूड है वो हमें प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are necessary for the proper functioning of the body. Modes of nutrition. Living organisms show two modes of nutrition. They prepare their own food. They take in ready-made food either from plants or from animals. या तो अपना खाना अपने आप बना सकते, या तो वो खाना या तो प्लांट से लेते हैं या तो फिर एनिमल्स से. The nutrition of the first type is called autotrophic nutrition, while the second type of nutrition is called heterotrophic nutrition. Autotrophic जो वो खाना अपने आप बनाते हैं, heterotrophic जो वो दूसरे से लेते हैं, dependent upon the other animal. Now, first we will talk about autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is found in green plants. Green plants prepare their own food through the process called photosynthesis. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, बेसिकली हमें ग्रीन प्लांट्स से मिलता है, और ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से बनाते हैं, by the process of photosynthesis. The leaves of these plants contain green pigment called chlorophyll. Without chlorophyll, food cannot be prepared by the plants. तो plants के अंदर green pigment होता है, chlorophyll, उसकी ही मदद से वो खाना बनाते हैं. अगर वो green pigment present नहीं होगा, they will not be able to make food. Green plants are called autotrophic organism और autotroph. उन्हें हम autotrophic organism भी कहते हैं green plants और autotroph भी कहते हैं. Now, photosynthesis. Photosynthesis is the process of food making using the energy in sunlight to convert water and carbon dioxide into carbohydrates. में हम water और carbon dioxide को किसमें convert करते हैं, into carbohydrates, जैसे हम starch and oxygen. The process of photosynthesis can be represented as the process of photosynthesis takes place in green leaves or plants. The food is prepared by the green leaves of the plant in the form of simple sugar called glucose. ठीक है, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो किस में होता है, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स में होता है. ठीक है, और जो फूड वो बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, एंड द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च. दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में. ठीक है, और जो स्टार्च है वो कहाँ स्टोर होता है, इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. The green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates. Sunlight energy को chemical energy में convert करता है by making carbohydrates. So we say that photosynthesis is biochemical process by which plants and a few bacteria use sunlight, carbon dioxide and water to produce oxygen and glucose. Oxygen is released by byproduct whereas glucose is used to carry out cellular activity. ऑक्सीजन हम किससे रिलीज करते हैं, बाय प्रोडक्ट से, और जो ग्लूकोज है उसको हम यूज करते हैं टू कैरी आउट सेलुलर एक्टिविटीज. कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब जो कंडीशन नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आई विल टेल यू दैट
Now, the general conditions necessary for photosynthesis are the presence of green pigment called chlorophyll, the presence of sunlight, the availability of carbon dioxide and availability of water. एक तो presence of green pigment होना चाहिए chlorophyll का, ठीक है, presence of sunlight and availability of water. ये क्या है आपके condition जो necessary है for the process of photosynthesis. Chlorophyll, it is a green pigment and is usually present in the leaves in structure called chlorophyll. क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट. सनलाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी टू मेक एनर्जी कैरिंग पार्ट. ठीक है, ये कन्वर्ट करता है कि उसमें ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को और उससे क्या बनाता है? एनर्जी कैरिंग पार्ट. वाटर, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. The roots of plants enables them to obtain water from the soil. The root system consists of main or primary root, rootlet और secondary root and root hinge. जो root system होता है उसमें primary root होती है, secondary root होती है और root hair. ठीक है, root hair increases the surface area of root and are found in great number near the tips of root. Water and soluble nutrients enter the root hair and pass through the secondary root. जो water और soluble nutrients हैं वो एंटर करते हैं रूट हेयर में और कहाँ से पास करते हैं? टू द सेकेंडरी रूट एंड ट्रेवल थ्रू द मेन रूट इनटू द स्टेम एंड रीचेस द लीफ थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम. फिर वो मेन रूट से स्टेम में जाते हुए आपने लीव्स में पहुंच जाते हैं थ्रू द स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम. स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइलम. जैसे ये है, ये आपकी प्राइमरी रूट है, दिस इज योर सेकेंडरी रूट, और जो इसमें से निकल रही है वो क्या आपकी टर्शियरी रूट. ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके रूट हेयर्स होते हैं और इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन. ठीक है, और जब ये ऐसे बढ़ जाता है इसे कहते हैं रीजन ऑफ इलॉगेशन एंड रीजन ऑफ सेल डिवीजन. यहाँ पे क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है और ये रीजन और ये रूट कैप है. ठीक है, वंस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, स्टार्च इज फॉर्म. द स्टार्च इज कैरीड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर. ठीक है, स्टार्च टेक प्लेस करता है तो स्टार्च फॉर्म करता है, उसको सारे पार्ट्स में ले जाता है विद द थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड पाइप. कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. इट इज एन अंडर साइड ऑफ द लीव्स. ठीक है, ये कहाँ होता है? अंडर साइड ऑफ द लीव. ठीक है, आपने देखा होगा सनलाइट है, मिल रही है. ठीक है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, देन इट्स गिविंग आउट ऑक्सीजन. ठीक है, रूट से वाटर लेता है, ये जाता है, ये क्या है? ये प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का आपका प्रोसेस. ठीक है, स्किल बेस्ड एक्टिविटी है टू शो द लीव्स कंटेन स्टार्च. इसमें आपको शो करना है कि लीफ के अंदर स्टार्च होता है, वो हम कैसे बताएंगे. आपको एक लीफ लेना है, वाटर लेना है, एल्कोहल लेना है. ठीक है, और बर्नर लेना है, ट्रिप्ड स्लैग बीकर लेना, आयोडीन का सॉल्यूशन लेना और एक टेस्ट ट्यूब लेना. देन take a leaf and boil in the water in the beaker. Then the softened leaf is test tube and pour some alcohol in it. Now put the test tube in the beaker and let it heat for tea. ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है. एक बार आप ऐसे आपको टीचर्स लोग करवाएंगे, लेकिन ये आपको करना है, ये एक्टिविटी आपको एक बार खुद ट्राई करनी. ठीक है, now factors affecting photosynthesis. There are several factors that are required for constant rate of photosynthesis. यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें चाहिए होते हैं for the carrying of photosynthesis. First is light intensity, concentration of CO2, temperature and water. ठीक है, सबसे पहले हम लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं. Increased light intensity results in a higher rate of photosynthesis. On other hand, low light intensity results in a lower rate of photosynthesis. जितनी lower intensity होगी उतना ही photosynthesis कम होगा. Now concentration of CO2, higher the CO2 helps in increasing the rate of photosynthesis. जितना ज़्यादा CO2 होगा तो rate of photosynthesis भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. Usually carbon dioxide is in the range of 300 to 400 adequate for photosynthesis. Now temperature. For efficient execution of the process, it is important to have an optimum temperature that ranges between 25 to 35 degree Celsius. जो टेम्परेचर होना चाहिए वो किस रेंज के बीच में होना चाहिए? 25 to 35 degree Celsius. As water is an important factor in this process, lack of water can lead to problem in the intake of carbon dioxide. The scarcity of water leads to the diffusion of stomata opening to retain the amount of water they have stored inside.
ठीक है। लैक ऑफ वाटर से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने। Pollution. Industrial pollutants from the particles may settle on the leaf surface. This can block the pores of stomata and makes it difficult to take in carbon dioxide. ये क्या करता है, pores को block कर देता है और difficult हो जाती है carbon dioxide को लेने। ठीक है। Now importance of photosynthesis, और photosynthesis की importance क्या होती है। Now imagine what will happen if to a life on Earth in the absence of photosynthesis. अगर photosynthesis होगी नहीं अर्थ पे तो क्या होगा। In the absence of photosynthesis, life will not be possible. Life possible होगी ही नहीं क्योंकि कोई food available नहीं होगा। कोई food available नहीं होगा तो how will the people live on the earth? Now there would be no food available. In the absence of food, the survival of living organism will not be possible, as all organisms are directly or indirectly dependent upon the food made by plants. अगर food available नहीं होगा then people will not be able to live because जो लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है फॉर देयर फूड। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी रिलीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड विदाउट रेस्पिरेशन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव। ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट नहीं होंगे तो बाय ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और सांस नहीं ले पाएंगे तो विल नॉट बी अलाइव। ठीक है। Photosynthesis maintain balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. This balance will be disturbed in the absence of photosynthesis. Photosynthesis जो है वो बैलेंस बना के रखता है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, एब्सेंस, अगर दिस बैलेंस क्या हो जाएगा, अगर एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Life thus would be impossible without photosynthesis. Similarly, if the sun does not rise at all for few months, photosynthesis will not take place and the balance of gases will be disturbed. Thus, existence of life would be greatly affected. देखो, अगर सन राइज नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो बैलेंस ऑफ गैसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर अगर सनलाइट के साथ करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देंगे, चाहे सनलाइट हो चाहे क्लोरोफिल के साथ करेंगे तो क्या देंगे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन देंगे। 6CO 6H2O गिव C6H12O6 and plus 6O2. Now green leaves the food factory of plant. देखो आपको सबको पता है ग्रीन लीव्स को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये जो फूड होता है वो कहाँ ही हमारा होता है, लीव्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, मेनली इन द लीव। द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव शोज फॉलोइंग फीचर्स दैट मेक इट सुटेबल प्लेस टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट। ठीक है, ये सुटेबल प्लेस होती है, यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो एफिशिएंटली होता है। The leaves are flattened to have large surface area to obtain maximum sunlight. They are thin to allow sunlight to reach to all the cells of leaf. They have large air spaces between the cells to allow carbon dioxide to enter. Leaves have a network of xylem vessels run through their veins. They supply water to all the cells of photosynthesis. Leaves have stomata through which carbon dioxide enters the leaf. जो leaves होती हैं उनके अंदर स्टोमेटा होता है जिससे उनकी लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या एंटर करता है उनके लीव्स। देखो, स्टोमेटा विद गार्ड सेल, क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा, क्लोज ऐसा होगा और ओपन ऐसा होगा। नाउ कुछ फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल। 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल होते हैं। ठीक है। ऑल द टाइम फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा ओपन बाय द स्वेलिंग ऑफ दिस गार्ड सेल एंड लेट द कार्बन डाइऑक्साइड from the atmosphere enter the leaves side by side and release oxygen formed during photosynthesis. गार्ड सेल क्या होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करते हैं तो वो स्वेल होकर खुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। At night when photosynthesis does not occur, stomata gets closed by shrinking of guard cells, leaving a slit between them to expel carbon dioxide from the respiration. ठीक है। Now we will study with synthesizes of other nutrients from glucose. हम कैसे synthesize करते हैं other nutrients को from glucose. Plants synthesize only the glucose through photosynthesis.
इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट सिंथेसाइज करते हो, वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? खाली ग्लूकोज, ठीक है, फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट such as sucrose, starch are synthesized from simple carbohydrate। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे आपका सुक्रोज और स्टार्च है, वो उनको सिंथेसाइज कहा जाता है किसमें? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फाइलम ट्यूब और इंटरमीडिएट ट्यूब। स्टार्च इज स्टोर्ड एज अ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टार्च को स्टोर करा जाता है एज अ फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका उसमें होता है, जैसे आपका मशरूम वगैरह हो गया। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर ग्रीन, बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स व्हिच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल नीदर इन लीव्स नॉर इन अदर पार्ट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स, आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं ना तो उनके अंदर क्लोरोफिल होता, ना तो क्लोरोफिल होता, ठीक है, ना तो उनके लीव्स में होता और ना ही उनके कोई भी पार्ट में होता। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, और ये अपना खाना मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। तो हाउ डू दीज प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन इट? तो ये कहाँ से मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी। सच प्लांट्स डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट्स और ऑन अदर लिविंग बॉडीज फॉर देयर न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organism cannot manufacture food and have to depend on other plant and animals to obtain energy is called heterotrophic nutrition। जो प्लांट्स अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते हैं और दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म विच हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, जिन जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिनके अंदर होता है हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। नाउ वी विल स्टडी सम टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमें कहाँ मिलता है? सेप्रोफाइट्स में मिलता है, इंसेक्टिवोरस में मिलता है, ठीक है, और पैरासाइट्स में मिलता है, हमें सिम्बायोटिक प्लांट्स में मिलता है। नाउ बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में बी सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेप्रोफाइट। सेप्रो मीन्स रोटन और डिकेइंग मैटर। देखो, और फाइट्स मीन्स होता है प्लांट। सेप्रो क्या होता है? डिकेइंग मैटर होता है, और फाइट्स क्या होता है? प्लांट होता है। तो ये वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे। These are the organism or non-green plants that food on dead and decaying organism matter for obtaining their food. These organisms feed on rotting wood of dead and decaying trees, rotten meats, dead animals, rotten bread. Such organisms are called सेप्रोफाइट। जो डिकेइंग ट्रीज की लीव्स होती हैं, रॉटन ब्रेड होती है, जो प्लांट्स पे डिपेंड होता है, हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स के। सेप्रोफाइट्स लाइक अ पैरासाइट्स लैक ग्रीन कलर, डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सेप्रोफाइटिक फंगाई secrete digestive juice on dead and decaying matter and convert into solution. The nutrients are then absorbed from it। पहले जो सेप्रोफाइट फंगाई होती है वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है, ठीक है, और डेड एंड डिकेइंग मैटर से, और इसको किसमें कन्वर्ट करके? एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करती है और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करती है। देखिए इससे मशरूम, ये क्या है? हमारा सेप्रोफाइट। Now fungi are commonly seen during and after rain. Hot and humid weather favor growth of fungi. Fungi like mushroom, yeast, bread molds and certain bacteria are saprophytes। फंगाई जैसे कि आपका मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? आपके सेप्रोफाइट के एग्जाम्पल। नाउ पैरासिटिक प्लांट्स। It is the mode of nutrition in which organisms or non-green plants feed on other green plants. These plants are called parasitic plants। ठीक है, जो प्लांट्स किस पे फीड करते हैं? दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक। द प्लांट्स दैट प्रोवाइड फूड इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। द पैरासिटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द रूट और द स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट। ये खाने को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स और स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट। They develop special root structure called ostoria. They enter the host tissue and reach the vascular handle. Some parasitic plants are total parasites as they completely depend upon the host plant for food. कुछ क्या होता है? टोटली पैरासाइट होते हैं, जो किसको होता है? दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं अपने खाने। डोनट और एपोडेंटिस, while other may be partial parasite, they can synthesize their food depend upon the host plant for water and minerals। ठीक है, जो खाली वाटर और मिनरल के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
जैसे mistletoe is a partial parasites and mango and mahuwa plant. Now symbiotic plants, when two organisms live together and share shelter and nutrition, their association is called symbiosis or symbiotic relation, and the organism are called symbiotes. They are mutually help each other. जब दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प हो रहे हैं, उस रिलेशन को क्या कहते हैं, उस symbiotic plant. For example, roots of leguminous plants, gram, urad, peas, bean, have nodules. Rhizobium bacteria lives in these nodules and convert atmospheric nitrogen into soluble nitrate. ठीक है, जो राइजोबियम होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है. The plant in turn provide nutrients for the bacteria growth. Regions are an association between fungus and microscopic green plant root and the लीचेंस होते हैं वो एसोसिएशन होता है किसके बीच का, फंगस के और जो आपका प्लांट ग्रीन एल्गी होता है उसके बीच. The fungus obtain nutrients from algae and the fungus in turn provide shelter to the algae. फंगस न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है एल्गी से और उसको उसके रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है. So that it can grow in harsh condition like rock surfaces and their would otherwise not survive. ठीक है. Next is insectivorous plant. Insectivorous plants are the plants that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insects. ठीक है, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है. Some of the common ones are pitcher plant, Drosera sandy, and bladderwort and Venus flytrap. In pitcher plant, the leaf is modified to form a tabular pitcher-like structure. The inside of the pitcher is lined with downward pointing hairs. These hairs do not allow an insect to climb back and escape. ठीक है, जिनके हेयर्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं कि जो इंसेक्ट है वो दोबारा से बाहर ना चल जाए. ठीक है, वापस ना चल जाए. The fluid at the bottom of the pitcher contains digestive juices that digest the insect. The slender leaves of bladewort bear a large number of very small pear-shaped bladders. These opens a trap door and the prey is sucked within 1,000 of second. जो prey होता है उसको 1,000 of second नहीं लगता, वो उसको suck कर लेता है. ठीक है, अंदर ले लेता है. ठीक है. Now the leaves of the sundew have tentacles with drops of sticky substances called mucilage at the ends. Insects get sucked in the substance and become entangled. और वो इंसेक्ट को कर लेता है, इंसेक्ट स्टक कर लेता है. ठीक है, और वो क्या हो जाती है, entangled हो जाती है. The helpless insect then get digested. और वो helpless फिर वो helpless हो जाती है जब उसको अंदर से अपने suck कर लेता है और फिर उसको digest कर लेता है. The trap of the Venus flytrap is highly modified leaf. On the inner surface, reddish hair to attract insects. There are short, stiff hairs. When anything touches these hairs, the two lobes of the leaf snap shut within last second. जो Venus trap के होता है, जब इसके अंदर कुछ आके बैठ जाता है, ये एक less than a second, एक सेकंड से भी कम टाइम लेता है, वो उसको ट्रैप कर लेता है, बंद कर लेता है. How nutrients are replenished in the soil. Plant utilize the minerals, nutrients, especially nitrogen present in the soil for the growth. As a result, there is depletion of nitrogen in the soil over a period of time. Manure contains lot of nitrogen apart from potassium and phosphorus. This is needed by the plants for healthy. Manure के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और पोटेशियम होता है. ठीक है. Symbiotic association of rhizobium and leguminous plants such as pea is the natural way of replenishing the soil with nitrogen. So sometimes farmers grow leguminous plant alternatively with other crop. आपने देखा होगा कि बहुत बार farmers तो क्या करते हैं, leguminous crop को, leguminous plant को एक alternate crop के साथ एक alternate crop की तरह उगा. ठीक है. This restores the nitrogen content of soil which the first crop was in. और इसको एक ऐसे ये क्या स्टोर करते हैं, इससे नाइट्रोजन को कंटेंट होता है उसको उस पर रीस्टोर करते हैं. ठीक है. The first crop was used. Now we will do the exercise of the chapter. ठीक है, सबसे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे. Now first is name the term which is used to describe the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. ठीक है, आपको मोड बताना है जिससे एक ऑर्गेनिज्म है फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है. वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन होता है.
नाउ नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। आपको ग्रीन पिगमेंट बताना है जो किसमें प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है। What is the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simpler substances? आपको वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना खाना बनाता है। ऑटोट्रॉफ होता है, हेटरोट्रॉफ होता है, होलोजोनिक या सेप्टोट्रॉफिक। क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं। नाउ अमरबेल इज अ काइंड ऑफ, अमरबेल जो है वो क्या है, वो है हमारा पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन द इंसेक्ट। ठीक है, जो प्लांट ट्रैप करता है और इंसेक्ट पे फीड करता है, क्या होता है आपका, पिक्चर प्लांट। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या होता है आपका, स्टोमेटा। नाउ we will do the next exercise, we will do the fill in the blanks. The entire process of taking in food and drink and using it for growth and daily activity is called, जो process होता है हम फूड लेना और ड्रिंक और यूजिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेली एक्टिविटी, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी लीव्स में। नाउ द डैश आर फाउंड इन ग्रेट नंबर नियर द टिप ऑफ रूट, हमें बहुत ज्यादा नंबर से मिलता है और रूट की टिप पे मिलता है, क्या होते हैं हमारे रूट हेयर। The dash carries, now the dash carries water up the roots to the leaves. कौन कैरी करता है वाटर को to the leaves? That is xylem. Parasitic plant derives food from the host by modified, जो parasitic plants है वो food derive करता है from the host by modified roots, किससे करता है, अपनी root से। The dash plants grow in places with lot of rotting dead leaves. कौन से होते हैं, जो dead leaves पे डिपेंड होते हैं, saprophytes. The arrangement in which both type of plants mutually gain from each other is called symbiotic relation. क्या होती है वो, symbiotic relation. The association between fungus and algae, क्या होता है, जो एसोसिएशन होता है फंगस और एल्गी के बीच में हम क्या कहते हैं, लीचेंस कहते हैं। इट इज नोन एज लीचेंस। नाउ नेक्स्ट इज साइज, वी विल स्टे ट्रू और फॉल्स, जो गलत है उस पर आपको फॉल्स लिखना है और जो सही है आपको ट्रू लिखना है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज बीइंग रिलीज्ड, CO2 रिलीज होती है, ट्रू। नाउ प्रोटीन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस का, ट्रू। केमिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, केमिकल एनर्जी प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस का, फॉल्स। Saprophytes are the plants that synthesize food for themselves. No, they are dependent upon other dead animals. किस पे डिपेंड होते हैं, dead animals पे। Each stomata is guarded by two kidney shaped guard cells. True. दोनों जो होते हैं उनके two kidney shaped guard cells होते हैं। Now section B, writing skills. Answers in one word. Which type of nutrition we will find in fungi, lichens, एमरबेल एंड पिक्चर प्लांट्स? कौन सा टाइप का होता है, पैरासिटिक। नेम अ पैरासाइट प्लांट विद लॉन्ग येलो स्लैंडर स्टेम, कौन सा प्लांट होता है जिनकी लॉन्ग स्लैंडर स्टेम होती है, कौन सा प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट। नेम द पोर्स इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, पोर्स ऑफ द लीव्स बताना, क्या होता है, स्टोमेटा। Which part of the plant is known as food factory, कौन से प्लांट को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, लीव्स को। Write the name which is partially parasite on mango and महुआ प्लांट, ठीक है, मैंगो और महुआ प्लांट का जो आपको नेम बताया जो क्या होता है, पार्शियल पैरासाइट होता है।
नेम द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपको गैस बतानी है जो रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद क्यों बनाते हैं, कि ऐसा क्यों है कि ऐसी प्लांट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द सनलाइट, और किस प्रोसेस से किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव, ठीक है, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का, आपको वो ही लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, ठीक है, क्लोरोफिल हमें खाना बनाने में मदद करता है, अगर वो नहीं होगा देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि अगर वो प्लांट में प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, और जब प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स उनको नहीं खाएंगे, तो अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। राइट द डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोटिक और पैरासिटिक रिलेशन, अभी आपको मैंने सिम्बायोटिक और पैरासिटिक रिलेशन दोनों बताए थे, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। पैरासिटिक प्लांट्स जो डिपेंड होते हैं, और सिम्बायोटिक किस पे डिपेंड होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, और पैरासिटिक किस पे होता है, अपने होस्ट प्लांट पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स जो डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स, आपके जैसे सैप्रोफाइट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इंसेक्टिवोरस हो गए, ये सारे क्या हैं, आपके हेटरोट्रॉप्स हैं। वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इज इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हैं वो इंसेक्ट क्यों खाते हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा पिंचर प्लांट, वो इंसेक्ट को क्या कर लेता है, सक कर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लिस्ट आउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, आपको लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन द मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन बताना आपको क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन आवर बॉडी, से हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, और उसके मोड्स, दोनों मोड्स को आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्ली, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग सिम्बायोसिस, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोसिस रिलेशन कितना होता है, जो जब दोनों सेप्रोफाइट्स किस पर डिपेंड होते हैं, अदर प्लांट को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, और पैरासिटिक प्लांट्स आपको बताना है, फॉर एग्जांपल आपका अमरबेद कैसा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, ऐसे आपको सेप्रोफाइट्स में भी पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। और विद एग्जांपल, डिफाइन फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस, आपको फोटोसिंथेसिस बताना है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और आपको ये करना है, आपको प्रोसेस बताना है फोटोसिंथेसिस का, और ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है उस क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल द प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है। जब प्लांट्स क्या करता है प्रोसेस, वो सनलाइट, एयर एंड वाटर लेते हैं, उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, जब प्लांट्स उससे खाना बनाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है, मैं आपको बता देती हूँ, ये है सारी इंपॉर्टेंस, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड अवेलेबल नहीं होगा, आपको ये सब लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये हॉट्स है, कुछ नहीं है, ये आपको करना है, सिंपल है, ठीक है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।